आप इतना टाइम कहाँ थे? At the very outset, let me apologize because annual batches were started and my lecture got delayed there. Therefore, it is delayed in the starting of this lecture. But देर तो है लेकिन अंधेर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट लगे हुए हैं। Clapping without reason. Alright, here we start, here we begin. कल हमने ऐसा कहा कि आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। ऐसा कहा था ना आखिर में। तो आज वो आज आ गया। Here we start. We said earlier on, primary data, secondary data. Primary data will be collected by me for myself. I marry, I do. Secondary data, you marry, I do. Well, I do means take the advantage of that, like that. मतलब खाना भी ना खाना ऐसा. Then we saw the methods of collecting the primary data. We said we had a interview method, that is the direct personal interview, indirect interview. Then we had the telephonic interview. We then saw we had a mailed questionnaire method. All the girls must protest because there is a male questionnaire, but there is no female questionnaire. Protest. Equality, gender bias हो गया. एक बार हमने ऐसा कुछ कहा था और ये इस लड़की ने मेरे से इतना झगड़ा किया था कि गर्ल्स को अंडर एस्टिमेट मत करो वगैरह. अभी वो हंस रही है. मैंने कहा अंडर एस्टिमेट किया? यू आर देयर इन द रिवीजन बैच. Jokes apart. But we said we had the relative advantages and disadvantages of this method. That personal direct interview method is generally used in case of the calamities. In case of the accidents or maybe what the income tax raid and all that, that we use this second, we are the indirect interview. Secondary data, the sources being international agencies, the government agencies, the semi-government agencies, non-government agencies, quasi-government agencies, and the unpublished data which are available in the books in the library. Books, library. पढ़ा करायचं नाही.
अभी हमने कहा कि in case of the secondary data, we need to do the scrutiny of the data, for which we check the accuracy of the data and the consistency, that is EDT of the data. We said then we collect the data. Data those are collected are to be presented. The first method of presentation that we discussed yesterday was the textual presentation. And in the textual presentation, it becomes boring, it becomes monotonous, it becomes laborious to read all those paragraphs. So we convert the textual data into the first method really applicable, that is the basic method, and that is the method of table. We then said what are the components, what are the parts of the table, table number, title of the table, head note containing the units of measurement or all this relevant information that is there in the box side. Then you have the stub part, left part indicating, describing the rows of that. The upper part, caption, that describes the columns and subcolumns. The central part of the table having the numerical figures will be called the body. And the source note is mentioned in the footnote. And that is for checking the validity of the data. Now what happens is that, imagine I want to state the number of students in the class in different years. Number of students in my class in different years. I started teaching in 1989, that was in IIT, forget that. But from 1993, I started my teaching students. 1993, the number of students in my class was, so this is number of students, number of students 400. 1994, the number went up to 615. ऐसा करते करते 2000, the number went up to 2000. Then 2001, number went up to 2189. ऐसा करते करते 2022, the number of students I taught was 2006. These are not the fictitious figures, these are the true figures. But यहाँ मैंने क्या किया है कि I have presented only one factor, that is number of students. Only one factor is there, that is number of students. In such case, this table is known as the one-way table. अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो तो ये आपको FY BCom में भी लगने वाला है. One-way table has one factor. What was the one factor covered? Number of students according to the years. I may consider boys, girls, intelligence, not intelligence. Boys intelligence, there are 100. Boys not intelligent, there is 0. Girls intelligent, there is 1. Girls not intelligent, there are 200. Tell me, in this table, tell me how many factors have been considered. One is the gender, sex, and the other is the intelligence. So this type of table is known as the two-way table. So two-way table is made up of how many factors? It covers how many factors? So table can be one-way, table can be two-way. Suppose if I consider boys, girls, I then consider, imagine
I consider intelligent, not intelligent, and then I consider foundation, intermediate, फाइनल. समझा? तो ये हो गया सब कॉलम. तो इंटेलिजेंट के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ सब कॉलम्स को बता. तो टेल मी हाउ मेनी फैक्टर्स वी हैव प्रेजेंटेड. व्हाट आर दोस? जेंडर. So this is a three-way table that covers gender, intelligence, and the class. So this is three-way table. So table may be one-way table, may be two-way table, may be three-way table, may be four-way table, can be any way. Because you can make any number of sub-classification of the columns. But generally we go till what? Three-way table. So यहाँ note लिखो. One-way table. कहाँ लिखेंगे? यहाँ tabular ये जो part किया है वहाँ कहीं तो भी लिखो. One-way table covers one factor. One-way table covers one factor. The two-way table covers two factors. Three-way table covers three factors. Three-way table covers three factors. अगर एक बात समझने की कोशिश करो कि स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में थ्योरी आने वाली है, प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली ज्यादा. प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई एक दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बाकी सब थ्योरी है. ऑलराइट. Now what happens, try to understand. What is the advantage of this method of table tabulation? एक तो हम बॉयज और गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं. So we can have a comparison between the two rows. We can have a comparison between the two columns. So comparison between the two rows or two columns is possible. में हम देखेंगे 21 मार्च नाइट को हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर ले. ओके, वहां हम क्या करेंगे, सब एमसीक्यू करेंगे, मॉड्यूल के भी करेंगे, स्कैनर के भी करेंगे और एवरीथिंग सब देखा जाएगा. लेकिन अभी रात को ऑनलाइन. ऑलराइट. However, what happens, try to understand. If you consider literacy in this country, क्या होता है कि ये लिटरेसी कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी. So it will fluctuate, na? But if you see the overall structure, long-term pattern, it is the increasing structure. So literacy is in India is showing the increasing structure. एक period था around 40-50 years back when the illiteracy rate was very high. गांव-गांव तक education system नहीं गया था, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे. This is the city, you must be proud of all the girls, that this is the city in which women's education process, thanks to Mahatma Jyotiba Phule and Tondo Keshav and of course Savitri Bai. All right. तो यहाँ literacy अभी is showing the long-term pattern, but that long-term pattern called trend. Trend क्या है? कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, that's fine, but what is the long-term trend? That trend cannot be understood by the table. So the demerit of limitation of method of tabulation is that long-term trend cannot be seen. अभी आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? Prices in India are showing long-term trend. कैसा? Increasing trend, declining trend, then stable trend. क्या बोलेंगे? Are prices stable? It's a rising trend. हाँ, कभी प्राइस कम हो भी सकती है, लेकिन ओवरऑल द प्राइसेस, यू टेक द प्राइसेस ऑफ एनी कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी कंसिडर, पेट्रोल, तो वो कभी कभी कम होगी.
लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पैटर्न ही तो इस तरीके का क्वेश्चन. तो advantage of this method of tabulation is that comparison between the two columns is possible. But the disadvantage is that long-term trend cannot be seen. But remember, this method of tabulation is the first step towards the analysis. Correct? It is the first step towards the analysis. This is the first step to analysis. And secondly, this is the most accurate method. This is the most accurate method. देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे टू द पॉइंट शार्प क्वेश्चंस है, और ये शार्प क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. समझा? That is why Pune University is given the name after Savitribai Phule University. Be proud of that. But the only difficulty is that Pune University, this name was famous all over the world. Now, when you say Savitribai Phule Pune University, it will take few years to develop that popularity. थोड़ा सा वहाँ एक फैक्टर है, but that's fine. But what we are at present, the credit goes to her. So him tapped for that. समझा? तो फिर अभी the advantage of this method is that comparison between the two rows and two columns is possible. It is the most accurate method. It is the first step towards doing the analysis. But the demerit is what? Long-term pattern cannot be. Why I am repeating this? Because I want these points to penetrate your mind. वापिस देखने चाहिए. थोड़ा टाइम जाएगा. We'll borrow the time. जितना टाइम हमें लगेगा उतना हम बोरो करेंगे, लोन लेंगे उस टाइम का. कहाँ से लेंगे? रात से लेंगे. रातों को छीनेंगे और फिर तो दिन में हम तब्दील करेंगे. समझा? Now, third method is what? The diagrammatic presentation. What is diagrammatic presentation? Suppose you pass foundation. Suppose you pass intermediate. Suppose you pass final, therefore you become a chartered accountant. Suppose therefore you get a good job. Good job. Therefore you get a good salary. Therefore you get a good secretary. And in few moments that good secretary becomes your good wife. And then in few moments that good wife delivers a child. Now that child goes in KG. And who are you? You are the daddy, you are the mom of that child. And you start teaching A for apple, B for bat. ये A for apple क्यों बोलते हैं? वो apple का picture वहाँ क्यों निकालते हैं? कि from that picture that child will come to know that this A is for apple. पर वो नए जमाने का child होगा ना, नए generation का होगा, वो बोलेगा A for ऐश्वर्या, B for Bipasha, S for Sunny Leone. फिर मम्मा डांटेगी कि ये एस फॉर सनी लियोन कहाँ? सनी लियोन तुझे कैसे पता है? वो बोलेगा डैडी वही तो देखते रहते हैं मोबाइल. All right. Anyway, so diagrams and pictures make it attractive. What? Understanding the data becomes attractive. Satyam. नितेश, प्लीज गिविंग द रिस्पॉन्सेस. लेकिन ये ऐसा कुछ तो भी नाम रखते हैं. वेब देखो, ये क्या नाम है का? वेब देखो, ऐसा नाम दिया है खुद को. वेब देखो.
क्या है तेरे में देखने जैसा? क्या है तेरे पास? All right. Now, what do we do? The diagrammatic presentation, the advantage is that it is the most attractive method. So लिखो that it is the most attractive method. It is the most attractive method. All right. Secondly, imagine I consider one graph for imports, one graph for exports. तो imports का ग्राफ इधर है, export का ग्राफ इधर है. So you can have a comparison between the two factors. For India, trade with China, trade with US, trade with most of the countries, developed countries, our imports exceed the exports. That is why, and this will reduce this trade deficit against India will reduce. More and more we go towards the solution. क्योंकि हमारा मेजर जितना इंपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है पेट्रोलियम के वजह से. समझा? Point is you can have a comparison between import and export. So comparison between the two factors is possible. Secondly, you can see for that matter अभी ये export है कम लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. Where are we the good exporters? Good exporters we are, Indians are in the field of intelligence. Intelligence. मैंने आपको बोला ना क्या हुआ वो लंदन में? क्या ही बोला? My son is there in London. He's doing his sense expertise. What happened the other day? He was sitting with a professor, and there was another student who was a British student. And that British student also was discussing some problem with his professor. He had this kind of equation somewhere. Exact equation I don't know, but my son told me only this. Suppose it is x plus y is equal to 4. And then you come to know y is equal to 3. And you have to find out x is equal to. British student and British professor both took the calculator. And they were playing with the calculator for 5 minutes. And they didn't know how to find this value. The son was sitting there, he said, ye to kya hai, x equal to 1. And then that British student said, bro, you are very, very clever. You are clever. And Parth, my son told, hey, this can be done by any 5th standard student in India. It's a very basic thing in India. But I tell you, this is not exaggeration. This does happen. If you go overseas, you will find we are very, very good in mathematical ability. ये यहाँ बैठ के नहीं समझने वाला, जब आप बाहर जाते हो तो समझ ये रियली गुड. That is why Indian talent is going towards. अभी सॉफ्टवेयर ये इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स की मोनोपोली नहीं है, ये आपकी मोनोपोली होगी. इफ यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इफ यू कंप्लीट द कोर्स लाइक Oracle, you will be over and above the status of the software engineers, even I dare to say those who are MTech from IIT, MTech computer. Because you are 2 in 1. You know finance, you know software. Oracle जैसा कोर्स करेंगे, और कितना कोर्स होता है वो 6 months का और 1 year. Data mining, new branch is coming up. Data mining. By the way, fortunately, that reminds me, one of my trained chartered accountant wants around 10 students on the full-time job. These students will have to work in the office from 10 o'clock to 5 o'clock. If you know some, send it direct to me. He said, Tally and etc. they need not know. We will teach. That's what he is saying. He gave the advertisements twice. And he said, my response,
I got so many applications. I took the interviews, but I did not find a student with eager to learn. Eager to learn. आप वहां जाएंगे और काम शुरू करेंगे तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि सिर्फ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बोलेगा कि ये लाइंस मार के दे दो. अभी कौन करता है, वो सब कंप्यूटराइज्ड है. तो ही सेड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट वन सिंगल स्टूडेंट रेडी टू लर्न. अगर आपके पहचान में कोई हो, आप में से किसी को चाहिए, प्लीज मीट मी. 10 students he wants immediately. He is not getting, he is desperate for getting. तो देखो, जिसकी परिश्रम करने की तैयारी है, मानसिक तैयारी है, मानसिक तौर पे तैयारी है, उसके लिए जॉब का कभी भी दर्द होने वाला नहीं. If some people want, your friends, you yourself, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि 10 to 5, 10 to 6 जॉब करने के बाद आप पहले और बाद में पढ़ाई को मैनेज कर सकते हो फाउंडेशन के, तो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. इंटर्नशिप, वो आर्टिकलशिप बाद में, ये तो डायरेक्ट जॉब शुरू हो जाएगा. जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा आपको. 18 ईयर्स सिर्फ होना चाहिए बस. तो आप है, किसी को चाहिए, इंटरेस्ट है, तो प्लीज आई विल डायरेक्ट यू इमीडिएटली, यू कैन स्टार्ट. लेकिन फिर लेक्चर पॉसिबल नहीं होगा ना, तो वो मैनेज करने का अगर कॉन्फिडेंस है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख के कर सकते हैं, फिर वो मुमकिन. ऐसा नहीं कि स्पेशली दोज हु आर नीडी, पैसों की जरूरत है, हो सकता है नीडी बट डिजर्विंग, सीखने का वो मौका मिलेगा, जॉब मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और फिर काम तो, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. ये जीएसटी के वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिजनेस गया है, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इतना ज्यादा चैलेंजिंग भी नहीं है. व्हाट ही वांट्स इज हिज असिस्टेंट्स टू शुड लुक आफ्टर दैट. जीएसटी का वो रिटर्न्स फाइल करो, वो कैलकुलेट करो, वगैरह वगैरह. अगर किसी को चाहिए तो मीट मी. Anyway, point is that you can have a comparison between the two factors, and you can have the increasing, decreasing long-term trend that also can be shown. So what is the advantage? Second advantage, trend can be shown. Trend can be shown. अगर मैं आपके जगह होता तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता. I would go, I would apply, I would go for the job, and I will manage my studies in the. अच्छा मौका मिलने वाला नहीं, because he doesn't expect you should know tally and etc. He said, well, he have a job asked, he will teach. सोच के देखो. Anyway, look at me. What is the disadvantage of that? What is the demerit of that? Disadvantage is that एक्यूरेसी होती नहीं है. क्या मतलब है? समझो आपका एक्सपोर्ट है $302 बिलियन. ये क्या है? आपका एक्सपोर्ट है, समझो. अभी आप क्या करेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालते हो, कोई स्केल लेते हो. could be here it is 100, could be here it is 200, could be here it is 300, वगैरह वगैरह. अभी 302 एग्जैक्टली कहाँ है, ये मार्क करना मुश्किल है. तो आप क्या करते हो? 300 के आजू बाजू, ये वाई एक्सिस पे होगा ना वो, तो 100, 200, 300, तो 302 कहीं तो भी आप यहां मार्क कर दोगे. कैन यू मार्क द फिगर एग्जैक्टली? नॉट पॉसिबल. और वैसे भी देखो, एक पॉइंट आप जब निकालते हो तो ये एक पॉइंट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट. एक स्पेसिफिक वैल्यू को मार्क करना इम्पॉसिबल, और फिर उस पॉइंट में जाने वाले जो ग्राफ है वो निकालना भी तो इम्पॉसिबल है ना. एंड दैट इज व्हाई देयर इज लेस एक्यूरेसी इन द डायग्राम presentation. So tell me, what are the advantages of diagrammatic pictorial presentation? Attractive, comparison is possible, long-term trend can be shown. Disadvantage, समझा?
यही तो प्रिपेयर करना है। अभी ये कॉमन सेंस की बातें हैं, इसमें कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत। एनीवे, अभी ये डायग्राम्स के अंदर क्या मेथड्स है? व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल अंडर दिस पिक्टोरियल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन? द वन इज द सिंपल लाइन डायग्राम। तो आप क्या करेंगे? जनरली यू हैव द टाइम सीरीज। व्हाट इज टाइम सीरीज? व्हाट इज टाइम सीरीज? अरे कल डिस्कस किया था ना। व्हाट इज टाइम सीरीज? अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ईयर, अकॉर्डिंग टू मंथ, अकॉर्डिंग टू डे, अकॉर्डिंग टू मिनट। शेयर प्राइसेस के बारे में अकॉर्डिंग टू मिनट होता है। एनीवे, तो ऑन एक्स एक्सिस ये सब एमसीक्यूज है। ऑन एक्स एक्सिस यू विल टेक द टाइम and on y-axis you will take the y values. For example, production of crop, ये y वैल्यू है सपोज। तो फिर क्या करेंगे? टाइम क्या है? 2001। टाइम है, ईयर है 2002। पॉइंट मार्क करो, पॉइंट मार्क करो, फिर उसे कनेक्ट करो लाइन सेगमेंट से। दैट बिकम्स द सिंपल। तो यहाँ एमसीक्यू क्या हो सकता है? कोई आपको ये डायग्राम निकालने को बोल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यू इधर ये है कि यहाँ एब्सिसा क्या होता है। अभी एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा हियर इज टाइम एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये समझता है ना आपको? जैसे आप यहां से वहां तक जाएंगे तो यू आर गोइंग ऑन एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बदलता है। लेकिन अगर लिफ्ट में हो तो हाइट बदलता है। दैट हाइट इज वाई, ना? तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया? जो भी वाई है, प्रोडक्शन है, जो भी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, सैलरीज है, प्राइसेस है, जो भी है। और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं जनरली? लेकिन अगर यू आर कंसिडरिंग द स्पेशियल सीरीज, स्पेशियल का मतलब geographical, then this abscissa is going to be the region. Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, पंजाब, है ना? गोवा एवढ्याच विचार. पहिले कमवा आणि मग गोवा. पहिले कमवा. समझा? कमाने की एक अपॉर्चुनिटी मैंने आपके लिए ओपन की है. एनीवे, लुक एट मी. यहां क्या होता है कि एक ही टाइम सीरीज, एक ही ग्राफ मैंने निकाला है. So simple line diagram is for one time series. लिखो कहीं तो भी, ये सिर्फ देखने की बातें नहीं है, ये समझने की और लिखने की बातें हैं. Simple line diagram is used for one time series. Simple line diagram is used for one time series. मतलब you can write production of crop, grain, कुछ भी is for one time series. अभी समझो. I consider the production of crop. I consider the production of crop. ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फार्मर इतना बेचारा बेबस होता है. ये क्या कितना प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होगा, मैंगोज का प्रोडक्शन कितना होगा, राइस का प्रोडक्शन कितना होगा, व्हीट का प्रोडक्शन कितना होगा, नहीं होता. आया तो बहुत आता है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता है. तो देयर इज अ ह्यूज फ्लक्चुएशन. एंड देयरफॉर सपोज यू से 2011, the production of that crop was suppose 112 tons in his farm. In 2002 कुछ तो हो गया, रेंज ज्यादा हो गया, कम हो गया, this went up to 24 tons. 2003 was a good year, you had everything fine and the production of crop was 2430. ही इसे मेरे को ग्राफ निकाल. तो कहाँ दिक्कत आएगी? कॉमन सेंस. ये कितना वेरिएशन है?
क्या स्केल लेंगे आप? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 लिया तो 24 का मार्किंग करना मुश्किल हो जाएगा। 2432 का मार्किंग थोड़ी 100, 400, 500, 2000 तक जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। So when there is a huge fluctuation, variation, it becomes difficult to take the scale. So simple line diagram will not be possible. तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं? These are the y value ना, production of crop is y. So we will take the log of y. अभी ये log लेने का एडवांटेज देखो क्या होता है कि when it is a 3-digit number, log becomes 2 point something. When it is a 2-digit number, log becomes 1 point something. When it is a 4-digit number, log becomes 3 point something. समझने की कोशिश करो, 5-digit नंबर है तो फिर 4 point something. बाकी लॉग से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा, क्या फायदा है? अभी कैलकुलेटर है हमारे हाथ में। लॉग और एंटी लॉग का बेसिक फायदा, बेसिक एडवांटेज ये है कि वो उदन करता है, मतलब ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है ना, तो लॉग लेंगे तो क्या होता है, ये जो वेरिएशन है कम हो जाती है। लॉगरिथमिक डिवीजन लेक्चर्स आई विल नॉट शो, आई विल नॉट वेस्ट टाइम, बट कोविड के समय का अगर डेटा आप चेक करेंगे तो वहां लॉगवाई प्लॉट किया हुआ मिलेगा। So this becomes a logarithmic chart or the ratio chart. So in that case, in the logarithmic chart or the ratio chart, on x-axis abscissa you have what? You have time. And on y-axis you have what? You have log y. So the abscissa will indicate time. Ordinate will indicate log y. और ये कब यूज किया जाता है? When there are huge variations, fluctuations. अगर लिखना है तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये लॉग का एडवांटेज क्या है, लॉग का बेनिफिट क्या है, लिखना है तो लिख सकते हो। लॉग कैसे रिड्यूस करता है वो समझेगा ना, जो बड़ी तो कॉम्प्रेस करके जो वेरिएशंस होता है उसको स्टेबलाइजर क्या करता है? आपके रेफ्रिजरेटर को स्टेबलाइजर, टीवी को स्टेबलाइजर होता है, वो क्या करता है कि अगर बहुत ज्यादा पावर फ्लक्चुएशंस हो तो रिड्यूस करता है, वो स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइजर, वो लॉग ये स्टेबलाइजर है। ऑलराइट, कोई बताएगा नहीं आपको इतनी डिटेल प्लीज, बट इफ यू नो योर कॉन्फिडेंस विल बी नेक्स्ट लेवल। समझा? ओके। अभी कभी कभी क्या होता है, दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे इंपोर्ट भी प्रेजेंट करना है, एक्सपोर्ट भी प्रेजेंट करना है ऑन द सेम ग्राफ। प्रोडक्शन ऑफ राइस भी प्लॉट करना है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट भी प्लॉट करना है ऑन द सेम ग्राफ in order to have a comparison. So you have multiple time series, 2 or more time series. So in that case what will you do? You will draw what is called the multiple line chart. Chart मतलब ग्राफ, मल्टीपल लाइन ग्राफ। तो वहां क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे क्या होगा? टाइम। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? टाइम। अभी ये कर्व हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है इंपोर्ट का, ये हो सकता है एक्सपोर्ट का। तो यहाँ 2, 3, 4 कितने भी चार्ट्स ऐसे निकाल सकते हो, बट इसमें एक बात ये होती है, देखो मेरी तरफ, अगर मेरे को ग्राफ निकालना है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड रेन, गड़बड़ हो गया क्योंकि रेन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में रहता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विल बी इन टर्म्स। अभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है तो एक ग्राफ पे कैसे निकालेंगे ना, स्केल क्या लेंगे? So in such case what we do is we draw the x axis लेकिन multiple y axis। एक y axis इधर होगा जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन टन्स दिखाएगा, एक y axis इधर होगा जो रेन दिखाएगा, और जब आप क्रॉप के लिए प्लॉट कर रहे हो तो इस y axis को रेफर करो, और रेन के लिए प्लॉट कर रहे हो तो इस y axis को। तो when do we use the multiple line chart? When they have the same units of measurement.
And when do we use the multiple axis chart? When there are two or more time series with different units of measure. Please, you have to be very prompt in accepting. एक आप मेरे से प्रॉमिस, हम आपसे एक वादा करते हैं, आपके पूरे पेपर में अगर जो लिया है थ्योरी में हमने क्लास में उसके अलग दूसरा कुछ आया तो फिर आई एम रेडी टू वेट ऑन दैट। और अगर वही आया और आप नहीं लिख सकेंगे क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो फिर यू विल, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना, नंबर वन। नंबर टू, जो जिस दिन हुआ है उतना रिवीजन करने के लिए घर में जाने के बाद, हॉस्टल पे जाने के बाद उतनी रिवीजन करने के लिए काफी हो। वो तो आप अगर कहीं दूर रहते हो और बस और ट्रेन से जाते हो तो वहां भी तो रिवीजन हो सकती है ना। बेस्ट वे व्हाट आई टेल यू इज, कहीं तो भी यू कैन यूज द मोबाइल फोन और वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो, आई डोंट माइंड। जनरली टीचर्स आर स्कैर्ड कि मैंने जो पढ़ाया है वो अगर गलत है तो वो वायरल होगा वगैरह। हियर आई एम गिविंग इट वन ऑफर, यू कैन कीप योर रिकॉर्डिंग ऑन, और जब कहीं जाते हो या खाना खाते समय वो डालो कान में ईयरफोन्स और फिर सुनो, ये तो अपने आप रिवीजन हो। नॉट अ बैड आइडिया। ये आपके लिए सब कुछ हमने, ये कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन, आप जितना काम करोगे कम है। एनीवे anyway, तो ये सब क्या हो गया, दिस इज अबाउट द डायग्राम्स, दिस इज अबाउट द डायग्राम्स। तो क्या है टाइप ऑफ डायग्राम्स? सिंपल लाइन डायग्राम, मल्टीपल लाइन डायग्राम, मल्टीपल एक्सिस चार्ट एंड रेशो चार्ट और द लॉगरिथमिक चार्ट। ये कब यूज करना है, वहां एक्स एक्सिस क्या दिखाता है, वाई एक्सिस क्या दिखाता है, वो अपने आप को करना है, ठीक है ना। ऑलराइट, नाउ आई वांट योर कंप्लीट कंसंट्रेशन, लुक एट मी। ये हो गया लाइन डायग्राम, मतलब हमने क्या किया, पॉइंट प्लॉट किया, पॉइंट को कनेक्ट किया लाइन सेगमेंट से, स्केल लेके वह स्केल रख के फिर वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। उसके जगह व्हाट यू कैन डू इज यू कैन use the bar diagram, you can use the bar diagram। तो यहाँ जो हमने ये प्लॉट किया है, समझो मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, तो ये लाइन चार्ट में क्या होता है, समझो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो इसको कनेक्ट करो, ये लाइन चार्ट हो गया, लाइन डायग्राम हो गया। लेकिन उसके बदले क्या करेंगे कि यहाँ एक बार निकालो, यहाँ दूसरा बार निकालो, यहाँ और एक बार निकालो, तो हाइट ऑफ द बार विल इंडिकेट द वाई वैल्यू। विड्थ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, विड्थ कितना भी चाहिए आपको, ब्रॉड उतना क्या बार, हाँ। तो लेकिन हाइट ऑफ द बार इज इक्वल टू वाई वैल्यू, so that is the bar diagram। so what is the second method, bar diagram। अभी ये बार डायग्राम में तीन प्रकार है। what are the three types of bar diagram? number one is a simple bar diagram, देखो मेरी तरफ कहीं तो भी लिखो सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम में क्या करेंगे कि समझो यू गॉट अ एक्स एक्सिस, यू गॉट अ वाई एक्सिस, यहाँ है 2001 प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इतना हुआ है, एक बार निकाल। 2002 में यही जो प्रोडक्शन इतना हुआ है, यहाँ एक बार, सिंपल बार डायग्राम। तो इट विल कंसिडर वन टाइम सीरीज, इट विल बी फॉर वन टाइम सीरीज। लेकिन इफ यू हैव द मल्टीपल टाइम सीरीज, वो मेरे तरफ, इफ यू हैव द मल्टीपल टाइम सीरीज, इफ यू हैव द मल्टीपल टाइम सीरीज, देन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, समझो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंडिकेट करना है, तो यहां इस केस में लाइन डायग्राम में आप क्या करते हो, मल्टीपल लाइन डायग्राम।
अभी यहाँ क्या करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम. So for the year 2001, one bar will be for the import, one bar will be for export. For the 2002, one bar is for the import, one bar is for the export. I know ये समझा. So when do we use the multiple bar diagram? When there are two or more time series. क्या advantage होगा? Advantage होगा comparison between the two factors is possible. लेकिन यहाँ क्या होता है, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट ये कंपैरिजन आप कर सकते हो, लेकिन वो ग्राफ के तरफ, बार डायग्राम के तरफ देख के आपको ये नहीं समझता है कि टोटल फॉरेन ट्रेड कितना है, टोटल फॉरेन ट्रेड कितना है, और उसमें से इंपोर्ट कितना है, उसमें से एक्सपोर्ट, ये नहीं समझता. तो द थर्ड मेथड इज डिवाइडेड बार डायग्राम. व्हाट इज द थर्ड मेथड? डिवाइडेड. तो वहां क्या करेंगे, देखो यहाँ यू कैन सी हियर, अभी यहाँ जो पहला डायग्राम मैंने आपको दिया है वहाँ क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम. समझा ना. हाँ दिया है रीजन 1, रीजन 2, येलो, ग्रीन और व्हाट, ब्लू. लेकिन मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है कि आपस में कंपैरिजन हो सकती है, पर टोटलिटी में कितना ये है, कितना वो है, नहीं समझ. तो द थर्ड मेथड आई सेड इज व्हाट, डिवाइडेड बार डायग्राम. अभी कहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड कितना है, उस हाइट का एक बार निकाल, जहां इंपोर्ट है वहां उसे कट करो, तो ये इंपोर्ट दिखाएगा, ये एक्सपोर्ट दिखाएगा. तो यहाँ इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट ये भी कंपैरिजन हो सकती है, और टोटल में से कितना इंपोर्ट की वजह से, टोटल में से कितना एक्सपोर्ट की वजह से कर सकता है. समझा ना आपको. एक गायत्री बोला ना तुम. तो फिर तो फिर यहाँ लिखो कि यहाँ मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है, टू कंपेयर द टाइम सीरीज, और डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है, टू कंपेयर द टाइम सीरीज एंड देयर रिलेशन टू द टोटलिटी, रिलेशन विद द टोटलिटी, दैट मीन्स होल डेटा. समझा. तो टेल मी, what is the advantage of divided bar diagram? You can have a comparison between the two or more time series, when you can have the comparison with the totality. Comparison. That clear बात नो. अभी जनरली क्या होता है, अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो कन्वेंशन, रीजन कुछ नहीं, कन्वेंशन, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम यूज करेंगे वर्टिकल बार डायग्राम, और क्वालिटेटिव डेटा के लिए वी विल यूज द हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम. अभी ये रीजन कुछ नहीं है, ये कन्वेंशन है. कुछ कुछ चीजें ये कन्वेंशन की होती है, रीजन कुछ नहीं होता है. तो यह गॉट अ वर्टिकल फॉर क्वांटिटेटिव एंड हॉरिजॉन्टल फॉर. समझा आपको. अभी जरा एक मिनट मेरे तरफ देखो. जो जो एडवांटेजेस डिवाइडेड बार डायग्राम की है वही एडवांटेजेस देयर इज अ थर्ड मेथड, दैट इज द पाई डायग्राम. ये सब आपने स्कूल में किया है, पाई डायग्राम. अभी पाई डायग्राम में क्या करेंगे, वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू, वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्रीज. Why 360? सर्कल ट्रैवर्सेस द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री. समझा ना. तो इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल. तो व्हाट इज सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाट इज सेंट्रल एंगल? इट इज द वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री. ये हो गया सेंट्रल एंगल. क्या एडवांटेज होगा, आपस में कंपैरिजन हो सकती है, एंड यू आल्सो कम टू द रिलेशन विद द टोटल. तो सब डिवाइडेड और डिवाइडेड बाय डायग्राम के जो भी पॉइंट्स है बाय डायग्राम के लिए निकालने का तरीका अलग. समझा. अभी एक मिनट मेरे तरफ देखो. यहाँ जब मैंने लाइन डायग्राम, टाइम इज अप आई गेस. I'm extremely excited, half an hour more late today, but
एनीवे, ये जो लाइन डायग्राम आप निकालते हो, ये जो लाइन डायग्राम आप निकालते हो, दैट इज वन डायमेंशनल। सिर्फ आप हाइट की तरफ देखेंगे ना, तो दिस इज वन डायमेंशनल। तो भी लिखो, दिस इज वन डायमेंशनल। समझा? लाइन डायग्राम इज 1D, लाइन डायग्राम इज वन डायमेंशनल, क्योंकि उसको सिर्फ हाइट देखते हैं। बार डायग्राम इज 2 डायमेंशनल। बार डायग्राम में क्या होता है? हाइट भी है, विड्थ भी है ना। विड्थ कुछ भी हो सकती है, लेकिन है। तो दिस बार डायग्राम इज 2 डायमेंशनल। लेकिन अभी कभी कभी आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन करते समय थर्माकोल के पीसेस कट करो, instead of drawing the rectangular bars, what you do is you cut the pieces of thermocos and paste them on the wall. कैसे एग्जीबिशन में होता है देखो। तो वहां उसको क्या हो गया, हाइट भी हो गई, लेंथ भी हो गई, ब्रेड्थ भी हो गई, विड्थ भी हो गई। तो इसका मतलब वो 3 डायमेंशनल हो गया। तो उसे कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। तो अगर इफ यू आर यूजिंग द क्यूबॉइड इंस्टेड ऑफ, in place of bar, in place of bar, then it becomes dimension, then it becomes a 3 dimensional graph. कितना डायमेंशन है वो देखो। Similarly, पाई डायग्राम इज 2 डायमेंशनल। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम instead of drawing the circle we use the disc. We use what? A disc. समझा ना? We use a disc like this और उसे डिवाइड करेंगे, तो इट विल बिकम 3 डायमेंशनल। जैसे बॉल होता है स्फेरिकल, sphere is a 3 dimensional, circle is 2 dimensional, and therefore if you are using the disc in that case, then all of a sudden it will become what? Then it will become, समझा? Is that clear? Good. I'm afraid we could have finished this chapter today. That is what according to my course, but we delayed, no problem, tomorrow we'll finish it off. लेकिन घर में जाके, घर को जाके थोड़ा सा उसके रिवीजन करो।